Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to this streak of one video per week. This continues and I know this will continue for a very long period of time. I just wait for this moment, I have that excitement, I have that energy, I have that different kind of enthusiasm ki Saturday or Sunday will come, I will shoot the video, edit it, upload it, and that is what I can do from my end, and that is what I'm trying to do, and that is what I'll keep continuing doing, because there are days where you don't feel like today was the day where I was thinking whether I should not, what should I do, whether I should upload the video, whether I should break the streak, because tomorrow I am having my CS final exams. But then I asked कि there will always be something, कभी कुछ होगा, कभी ये होगा. You have to learn to manage, and you have to, you'll always have the reasons, or you can say excuses if you don't want to do things. But if you are genuinely passionate about whatever you are doing, you will have to find that one reason, find that bit of time and manage and just get it done. That is what I'm doing. आज किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हैं, एंड दैट इज द फेथ विच पीपल हैव, या तुम्हारा जो फेथ है यूनिवर्स में, भगवान में, जो भी वर्ड यूज करना चाहो. आई प्रीफर यूजिंग यूनिवर्स, सो दैट्स व्हाट आई यूज थ्रू आउट द वीडियो. वो एक्चुअली है या बस बोलने के लिए होता है? डिकोड करते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज from the moment I started understanding about the faith in the universe and just absolutely trusting him and following it in my life, it helped me a lot, especially during the tough times. Of course, that is the time when you need him the most, right? And it is helping me. So I've seen, I've communicated, I've done conversations. I understand that the faith lacks. There will be people will be going to temples every day, doing their prayers, but when the tough times come, the faith lacks. When the things are not going against your plans or whatever you are planning, वैसे नहीं हो रहा है, तो the cravings start coming and you just keep questioning कि why me always, मेरे साथ कैसा क्यों होता है, and all those things. So इस पे बात करते हैं because ये बहुत important है. Either you say that you have faith, you are doing prayers, you should show, and वो matter करता है tough times. So इस पे थोड़ा अच्छे से डिटेल में बात करते हैं. So what is the meaning of having faith in the universe or having faith in God or whatever? As I said, I'll be using the word universe. That whatever is happening with you, whatever, there will be things which will be happening कि तुम्हें ऐसा चाहिए था, ऐसा ही हो. There will be times where things will be happening तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए था, will be ऐसा. It can be in every phase of your life, right? चाहे तुम्हारा सपना हो, तुम्हारी फ्रेंडशिप हो, तुम्हारा रिलेशनशिप हो, तुम्हारे सब कुछ जो भी तुम्हारे लाइफ. एक तुम्हारी इच्छा होती है, कभी चीजें वैसी हो जाती है. एक तुम्हारी इच्छा नहीं होती है, फिर भी चीजें वैसी हो जाती है. तो ये फेथ का रोल कब आता है? चलो पहले तो इसको समझो. ऑफकोर्स फेथ का रोल कब आता है? जब तुम कुछ सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, या मुझे ऐसा चाहिए, या मुझे इस पर्सन के साथ रहना था और ज़्यादा टाइम बिताना था, रिलेशनशिप में रहना था, दोस्ती निभानी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो नहीं होता, या तुम किसी चीज़ में फेल हो जाते हो, या वो इंसान छोड़ के चला जाता है, या दीज ऑल आर द थिंग्स, या तुम्हें जो जॉब चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, उस टाइम पे नहीं मिलती. उस टाइम पे फेथ का टेस्ट होता, उस टाइम पे तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट होता, उस टाइम पे तुम्हारे एटीट्यूड का टेस्ट होता, उस टाइम पे यू आर गोइंग थ्रू फेलियर्स, व्हेन यू आर हिटिंग लोज, व्हेन में कोई इश्यूज चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, उस टाइम पे फेथ का टेस्ट होता है. दिया है तो फिर तो सब बढ़िया ही है, तब तो फिर सोचने का मौका भी नहीं मिलता. कुछ नहीं बढ़िया है ना. डिपेंड करता है कि तुम कैसे उस फेज से बाहर निकलो, कितना फेथ दिखाओगे, और दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग फेथ इन द यूनिवर्स? दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग विद यू इज हैपनिंग फॉर योर बेटरमेंट. कुछ चीजें हमारे साथ हो जाती, आज लगता है शायद गलत, कुछ साल बाद पता चलता, but you can't carry that grudge, that frustration, that irritation with you, right? You have to understand कि accept it, basically acceptance. हम लैक कहाँ करते हैं? हमारे साथ कुछ भी होता है, फेलियर है, कोई धोखे चला गया, कुछ भी हुआ, हमें कोई जॉब चाहिए थी नहीं मिला, कोई मनी रिलेटेड इशू हुआ, what we do is we hold on to things. The moment we'll start accepting, वो acceptance कब आएगा पता है? जब तुम्हारा ना unquestionable faith हो, मतलब तुम्हें पता ही है यार, तुम्हारे मन का हुआ तो बहुत सही, नहीं हुआ तो और भी ज्यादा सही. वो डायलॉग बहुत रेलेवेंट लगता है व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर लाइफ, और तुम्हें इसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा. हम हमेशा बोलते रहते हैं कि यार वी आर नॉट लकी, हमारे साथ ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट इफ यू ऑब्जर्व योर लाइफ वेरी क्लोजली, बहुत छोटे छोटे गिफ्ट तुम्हें मिले होंगे जो तुम्हें सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो जाएगा, बट मिले थे. बट शायद वो इतने छोटे थे, शायद हम इतना ऑब्जर्व ही नहीं करते, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि वो गिफ्ट कब आए, कब चले भी गए, या अभी भी है. इट्स जस्ट दैट वी डोंट एम्ब्रेस, राइट? हम वो सारी बातें नहीं करेंगे, हमें बैठना है, बातें करनी है, तो ऐसी बातें करनी है, व्हाटएवर इज नॉट गोइंग आवर वे, व्हाटएवर इज गोइंग अगेंस्ट आवर विल, ऐसी सब बातें ही करेंगे. हमें क्रिप करना ज्यादा मजा आता है, वो हमारे लिए नेचुरली भी होता है, तो बहुत ईजी भी हो जाता है, और बहुत ज्यादा कंपनियां भी मिल जाती है वैसी बातें करने के लिए. सो यू हैव टू स्टार्ट सिटिंग ऑब्जर्विंग, यार पास्ट में यू हैव बीन बिल्ड आउट,
लास्ट में जब तुम्हें लगा था चीजें नहीं होगी, हुई थी, अभी भी होगी ना यार। क्योंकि जो फेज होता है, जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही, वो फेलियर हो, मनी रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, पर्सन रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप रिलेटेड हो, उस फेज से लेके जब तक तुम उस फेज से बाहर निकलो, बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। तुम्हारा माइंड सेट, तुम कैसे थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ने वाले हो, उस लेसन को कैसे लेने वाले हो, क्या मैसेज पास करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए ना तुम्हारे लाइफ में, खराब से वेट, हैव फेथ कि कुछ बढ़िया ही होगा। आज नहीं तो कल पता ही चलेगा, आगे जाके डॉट कनेक्ट ही होगा, कुछ डॉट ना कुछ सालों बाद कनेक्ट होगा। और इसलिए वो एक्सेप्टेंस रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर तुम फ्रस्ट्रेशन रखोगे, ये सोचोगे हाँ किसी दिन तो डॉट कनेक्ट होगा, तब तो फ्रस्ट्रेशन लेके चलते, यू आर नॉट हेल्प। हो सकता है वो 10 साल बाद डॉट कनेक्ट हो, नहीं पता, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, सिर्फ उन्हीं को पता है। सो यू हैव टू हैव दैट फेथ। और जब हारोगे, या जब कोई चले जाएगा, या जब नहीं मिलेगा जो चाहिए होगा, तब अगर तुम जिस दिन उन फेस को एम्ब्रेस करना सीख गए, स्माइल के साथ, हंसी के साथ, ऊपर देखे थैंक यू बोलना सीख गए, या ऊपर देखे ये बोलना सीख गए कि आई एम वेटिंग, ये मेरे साथ क्यों हुआ है और मुझे इसका जवाब चाहिए, बट तब तक आई एंजॉय माय। पता है इंसिडेंट, एक स्टोरी सुनी थी कि देयर वाज वन रिच, वेरी रिच इंडिविजुअल, सो ही बिल्ट लाइक ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, एंड वन डे व्हाट हैपेंड, यू नो, उसकी जो ऑफिस थी, फैक्ट्रीज थी, वो जल गई। ही वाज स्टैंडिंग विद हिज सन, ही कॉल्ड हिज सन, मतलब उसने अपने बच्चे को बोला कि जाओ फटाफट मम्मी को बुला के। एंड व्हाट वाज हिज रिस्पांस? इवेंचुअली गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें आ रही थी ना, बिकॉज सब कुछ खत्म हो गया। ही सेड टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन की हमने जो भी गलतियां की थी, हमसे जो भी चीजें सही नहीं हुई थी, आज इन सबका होते ना हमारे से वो हो चुका है। लाइक गॉड हैज गिवन अस अनदर अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू स्टार्ट एंड वी विल स्टार्ट अफ्रेश। एंड देख लो, ये जो भी हमारी गलतियां थी, जो भी हमने गलत काम की, आज सारे एशेस में हो गए थे। नाउ द न्यू लाइफ स्टार्ट्स, एंड दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू नीड टू हैव कि ठीक है यार, देयर विल बी टाइम्स, होगा, कभी नहीं होगा सब बहुत खराब, कभी बहुत अच्छा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। रोज अच्छा भी होगा तो मजा नहीं, रोज खराब भी होगा तो भी मजा नहीं आएगा। बैलेंस होना चाहिए। बट ये जो लाइफ है, यू हैव टू लिव इट एवरी डे। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ ग्रेट बिलीफ सिस्टम। अभी बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, सारे कुछ हो जाए। यू ऑलवेज हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट। कुछ नहीं तो पेरेंट्स हो, कैन बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। कुछ ना कुछ तुम्हारे पास हमेशा हो। और अगर कुछ नहीं मिलेगा ना कि यार नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट इन माय लाइफ, तुम्हारी लाइफ है। तुम आज जब उठते हो ना, बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते। सो स्टार्ट एम्ब्रेसिंग इट। तुम्हें नहीं पता व्हेन इट इज योर लास्ट डे। We take this for granted. We start craving, we keep doing all this thing. But we need to realize, you never know when it's going to be a day जब तुम सोने जाओगे, तुम अगले दिन उठोगे। So at least be grateful about that, because वो लाइफ है, तो तुम्हारे पास कुछ भी करने का मौका जो है, जिस दिन लाइफ चली गई तब तक। So याद रखना, बहुत सारा कुछ भी हो जाए, यही सोचना कि everything is happening for a reason। ये चीज को एब्जॉर्ब करके रखना। इस चीज में मुझे बहुत तरीका है कि अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ऊपर वाले के मन का हो। बहुत सालों तक ये कोट कभी समझ नहीं आया, बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, ऐसा लगा इससे ज्यादा सेंस कुछ मेक ही नहीं करता। तो मतलब कितना ईजी है, मतलब इस कोट को हर सिचुएशन में अप्लाई कर लो, एंड यू विल बी गुड टू गो अहेड इन लाइफ और एक्सेप्ट कर लो चीजें और सपोर्ट कर। थैंक यू।